محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی. روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر. ریاستی حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کسان فائدہ بخش فصل اگائے. ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی. موتی گاؤں سے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کا خصوصی لگاؤ. انہوں نے کسانوں کے لیے کیا نئے دور کا آغاز. ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کا خطاب. عوامی شکایت پر رکن اسمبلی شکیل عابر نے کیا بودھن فلٹر بیڈ کا دورہ. کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی عہدیداروں کو دی ہدایت. اس بار موسم بارش ہو سکتا ہے اور بھی خطرناک. ایک طرف کورونا وائرس، دوسری جانب موسمی امراض. اس پر نہ کے برابر اقلیتی علاقوں میں شعور بیداری. غریب کی نہیں پیسے والوں کی دنیا. ارسا پلی تالاب اراضی پر مسلسل جاری قبضہ لیکن عہدیداران خاموش. روشنی ٹی وی کی خصوصی رپورٹ. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. عوامی شکایتوں پر رکن اسمبلی شکیل عامر نے کیا فلٹر بیڈ کا دورہ. تعطل کا شکار کاموں کو جلد سے جلد ختم کرتے ہوئے بودھن کی عوام کو صاف و شفاف پینے کا پانی سربراہ کرنے کی عہدیداروں کو دی ہدایت. بودھن میونسپلٹی کے تحت سابقہ میں پینے کے پانی کی سربراہی نہیں ہونے کی وجہ سے حالات کافی خراب ہو گئے تھے. نئے میونسپلٹی بننے کے بعد پینے کے پانی کے مسئلے کو بودھن رکن اسمبلی جناب شکیل عامر کے علم میں لانے پر وہ پینے کے پانی کی سربراہی کے کاموں کا جائزہ لیے. انہوں نے کاموں میں تیزی لانے کو کہا اور اس کے لیے فنڈ کی منظوری کے لیے اور فلٹر بیڈ کی تبدیلی کے لیے ذمہ دار عہدیداران سے بات کر کے اس مسئلے کو فوری حل کر کے عوام کو بہت جلد صاف پینے کا پانی سربراہ کرنے کی ہدایت. نئی میونسپلٹی کے قیام عمل میں لانے کے بعد سے اس مسئلے پر نظر رکھنے کے باوجود بھی ایک ماہ شہری ترقی ہونے کے بعد اس کے بعد ریاست تمام لاک ڈاؤن کے نافذ ہونے پر میٹیریل کی سربراہی پوری طرح سے رک گئی تھی. لاک ڈاؤن کے مکمل ہونے کے بعد کاموں میں تیزی لاتے ہوئے پائے تکمیل کو پہنچا کر بودھن کے عوام کو بہت جلد صاف پینے کے پانی کو سربراہ کیا جائے گا. ٹڈوں کے حملے سے چوکس رہنے کسانوں کو مشورہ. نظام آباد میں ضلع کلکٹر کا عہدیداروں کے ساتھ اجلاس. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے کہا کہ ٹڈے بہرحال موجودہ مہاراشٹر کے امراوتی کے بعض علاقوں پر مرتکز ہے جو کہ ریاست تلنگانہ کے سرحدی اضلاع نظام آباد، نرمل، عادل آباد و دیگر علاقوں میں حملہ کرنے کے امکانات ہیں. اس خصوص میں کسانوں کو چوکس کرنے محکمہ زراعت کے صلاح و مشوروں پر عمل کرنے قابل از وقت اقدامات کیے جائیں. ضلع کلکٹر آج کلکٹریٹ میں محکمہ زراعت کے عہدیداروں سے ضلع میں ٹڈوں کے حملہ کرنے کے امکانات جن کی روک تھام کے اقدامات پر جائزہ اجلاس منعقد کیا. انہوں نے کہا کہ ٹڈوں فصلوں پر حملہ کرنے پر شدید نقصانات ہوں گے. خصوصی موسم کی صورتحال میں ٹڈوں کی غول ہوا کے بمشمول کم وقت میں دور دراز علاقوں فی گھنٹہ 1.30 کلومیٹر کی رفتار سفر کرنے اور ان کے حملوں سے تمام اقسام کی فصلوں کو کھا جانے سے بچانے قبل از وقت اقدامات کرنے ہوں گے. انہوں نے کسانوں کی فصلوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مشورہ دیا. ضلع کلکٹر نے محکمہ زراعت کو مشورہ دیا کہ ٹڈوں سے تحفظ کے لیے مالکین ان کے دباؤ والے علاقوں میں کی نشاندہی کے ذریعے ٹڈوں کو روکنے ڈبے، میٹل پلیٹ، ڈرم ریڈیو یا لاؤڈ اسپیکر جیسے الیکٹرانک مشینوں کی آواز سے فصلوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. نیم کیمیائی مادہ 0.15% IC کو 15 لیٹر پانی میں 45 ملی میٹر ملا کر اسپرے کرے. کیونل خاص 1.5% DP یا کلورو پیروفاس 1.5% DP کی 2.5 کلورو 25 کلو گرام میں ملا کر فصلوں پر چھڑکاؤ کرے. ضلع کلکٹر نے ٹڈوں کے حملوں سے فصلوں کی حفاظت کے لیے مختلف ادویات کے چھڑکاؤ اسپرے کا مشورہ دیا. اجلاس میں زرعی عہدیدار موجود تھے. ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے منڈل نائب صدر دیہی ترقی کمیٹی کے سابق صدر گنگا رام کی عیادت کی.
रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने मंडल बालकोंडा से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति किसान सेल दही तरक्की कमेटी के साबिक सदर गंगाराम की यादत की। बालकोंडा मंडल से ताल्लुक रखने वाले दही तरक्की कमेटी साबिक सदर बालकोंडा मंडल किसान सेल कमेटी के नायब सदर गंगाराम गुज़िश्ता चंद यौम से बीमार रहने की इत्तला मिलने पर रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी जुमेरात को मंडल के इलाके पोचमा गली में मुकीम घर जाकर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इयादत। इन्होंने सेहत के बारे में जानकारी करते हुए कहा कि मुश्किल तरीन हालात में हौसला नहीं खोना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। इस मौके पर डीसीसीबी के चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, बालकोंडा टीआरएस पार्टी मंडल के सदर प्रवीण रेड्डी, पीएससीएस डायरेक्टर नागमपेट शेखर रेड्डी, कॉप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, मैनार्टी मंडल के कायदीन सैयद रियाज अली, एम ए आरिफ, शंकर, सैयद रियाज अली व दीगर ने शिरकत की। हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए हर वक्त तैयार। किसान मौसम बारिश से कबल फसल की तैयारी करे ताकि फसल फायदा बख्श हो। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। जिले निजामाबाद वर्नी मंडल श्रीनगर मुआवजे में बारिश की फसल के मंसूबे पर शौर बेदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मार्केट में तलब वाली फसल की काश्त करने पर किसानों को इनकी पैदावार फसलों की बेहतर कीमत मिल पाएगी। इन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर जमीन, मौसमी हालात और बेहतर बारिश के फवायद से पूरा फायदा उठाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अवामी तलब वाली फसलें उगाने से बेहतर कीमत मिलने से किसान खुशहाल होगा। अगर एक फसल तमाम किसानों के उगाने पर बेहतर कीमत नहीं मिलती बल्कि नुकसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि केसीआर की हिदायत के मुताबिक बारीक चावल की फसल, धान की फसल उगाने को कहा। केसीआर की हिदायत के मुताबिक फसलें तैयार करने पर दीगर रियासतों में तलब को मद्देनजर फसलों को फरोख्त कर सकते हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलने पर किसान की तरक्की हो सकती है। इन्होंने कहा कि वानी मंडल में किसान, ओहदेदारान, कायदीन तमाम मिलकर एक इजलास मुनक़िद करके अपने इलाकों को मद्देनजर रखकर तलब वाली फसलों का इंतखाब करके तरक्की करना चाहिए। इस शौर बेदार प्रोग्राम में आरडीओ गोरीराम, वर्नी एमपीपी श्री लक्ष्मी, वीरा राज, जेडपीटीसी हरिदासु, वर्नी मंडल टीआरएस पार्टी सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి రావాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం। స్థాయి నుంచి రైతే బ్యాంకుల వడ్డీతో మనం డిపాజిట్ చేసుకునేటువంటి స్థాయికి రావాలి, ఆ స్థాయికి ఎదగాలనేది ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పట్టుదల। ఇవన్నీ చేతాం గట్టిగా ప్రాజెక్టులు కట్టడం గాని, కరెంట్ ఇవ్వడం గాని, రైతు బంధు గాని, ఫ్రీ సరఫరా గాని, ఇవన్నీ చేసేది కూడా ఉద్దేశం అదే। కాబట్టి దీన్ని రైతులు అర్థం చేసుకోవాలి। ఒకప్పుడు రైతుల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ప్రభుత్వం చెబుతున్నటువంటి విధానం నచ్చిన రీతిలో, మన అనుకూల రీతిలో, ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో కాకుండా ఒక నియంత్రణ పద్ధతిలో। एक तो कोरोना का खौफ, दूसरी जानिब मौसमी अमराज, दोनों के दरमियान मासूम अवाम। ओहदेदारों की जानिब से मौसमी अमराज से हिफाजत के लिए ना के बराबर अक़लियती इलाकों में तशहीर। अक़लियती में अभी भी पानी की निकासी व कचरे का निज़ाम दुरुस्त नहीं। इस बार का मौसम बारिश हो सकता है और भी खतरनाक। कायदीन व ओहदेदार जागे गफलत की नींद से। मार्च ता जून का मौसम डॉक्टर्स की जुबान में हेल्थ सीजन कहा जाता है, जो मौसम गर्मा होता है क्योंकि इसमें मौसमी अमराज फैलने के इम्कान काफ़ी कम होते हैं। लेकिन वही मौसमी बारिश इसके बरक्स होता है क्योंकि इस मौसम में मौसमी अमराज फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। गुज़िश्ता साल 2019 में सफाई को नज़रअंदाज करने की वजह से तमाम सरकारी व खानगी हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली और इस बार ये मामला कुछ अलग होगा क्योंकि एक जानिब कोरोना वबा का खतरा तो दूसरी जानिब मौसमी अमराज। इन दोनों में फ़र्क करना एक तो काफ़ी मुश्किल है तो दूसरा डॉक्टर्स भी इससे खौफज़दा है। ऐसे भी निजामाबाद बल्दी की जिम्मेदारी और अवाम की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन फिलहाल हुकूमत की जानिब से इन मर्ज के खात्मे के लिए तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है जो अक़लियती इलाकों में सिफर के बराबर है।
न अभी तक किसी किस्म का कोई उर्दू जबान में हमने तशरीही पर्चा देखा है और न ही अभी तक अवामी नुमाइंदा व बल्दी जिम्मेदार ने इसके बारे में कोई शऊर बेदारी की। वाज़ेह है कि किसी भी दुश्मन से बचने के लिए इसके बारे में जानना काफी जरूरी होता है, लेकिन जहाँ शहर के एक जानिब इससे मुतालिक तशरीही मुहिम जोरों पर है, वहीं अखलती इलाके में इस बड़े खतरे से ला इल्म है और तशरीह के नाम पर सिर्फ चंद मकामात पर कुछ पर्चा चिस्पा किए गए हैं जो अक्सर अवाम के समझ के बाहर है। इससे कबल हर घर पर कचरे की अलहदगी के लिए डस्टबिन की तकसीम तो भी अमल में लाई गई थी, लेकिन इस बार वो भी किसी को मैसर नहीं। वाज़ेह के 7 जून से यहाँ पर मौसम बारिश की हर साल शुरुआत होती है, लेकिन मौसम में हवाई तब्दीली के सबब अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में अहदेदारों की तैयारियां सिर्फ और सिर्फ जमा खर्च के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में कई दिनों तक कचरा जूं का तू है। जमीन पर कब्जा करने के लिए भी औकात होना जरूरी। अगर गरीब की जंगल में भी कब्जा करे तो अहदेदार घंटों में ही बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन अरसापली तालाब की अराजी पर मुसलसल कई सालों से कब्जा, अहदेदार खामोश। मुकामी कायदीन की नुमाइंदगी पर आज निजामाबाद नॉर्थ MRO ने किया दौरा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं। निजामाबाद का बोधन शाहरा पर मौजूद अरसापली तालाब, जिसको रामदू तालाब भी कहा जाता है, जिसको माजी में यहाँ की ज़राई ज़मीन की सरबराही के लिए बनाया गया था, लेकिन चंद मालदार अफराद इस पर जाली दस्तावेजात बनाते हुए कब्जा किए हुए, जिस पर अरसापली दही कमेटी महकमे इरिगेशन व दीगर तमाम महकमे खामोश है, जिनके खिलाफ इस इलाके की अवाम की जानिब से शिकायत दर्ज करने पर निजामाबाद नॉर्थ MRO ने तमाम अराजी का जायजा लिया और इस रिपोर्ट को ऑडियो की नजर में लाते हुए कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह है कि अगर कोई गरीब बेघर अफराद किसी जमीन पर कब्जा होता है तो हुकूमत इस गरीब के नुकसान को ना देखते हुए इसके मकान को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर देती है, लेकिन इतनी बड़ी अराजी पर कब्जा मुसलसल कई सालों से चलने के बावजूद आज तक किसी ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। తహసీల్దార్ నార్త్ మండలం ఇక్కడ సర్వే నెంబరు 216 రామూర్తి చెరువు మొత్తం ఎక్స్టెంట్ 29 ఎకరాల 13 గుంటలు. ఇందులో కొన్ని అక్రమంగా కట్టడాలు వస్తున్నాయన్న అభియోగం పైన ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు రెవెన్యూ సంయుక్తంగా ఇక్కడ విజిట్ చేసి అక్రమంగా కట్టినటువంటి కట్టడాలతోటి ఈ ఫస్ట్గా అయితే మొదటిగా మనకు FTL నిర్ణయించి సర్వే చేయించి FTL బౌండరీలోపు శిఖం బౌండరీలోకి ఎలాంటి కట్టడాలు వచ్చినా తొలగించడానికి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఆర్డర్స్ కోసం రాసి ఎలాంటి కట్టడాలనైనా తొలగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। माह जून में तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को 1500 रुपये नकद और फीकस 12 किलो चावल की फ्राहमी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कल ऐलान से सफेद राशन कार्ड होल्डर्स में खुशी और मसरत का इजहार किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि माह जून में भी सफेद राशन कार्ड होल्डर्स के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये जमा किए जाएंगे, फीकस 12 किलो चावल दिया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना के तहत वाक़ महकमे सिविल सप्लाई की जानिब से 21 जून से रियासत भर के राशन कार्ड गिरिंदों को फीकस 12 किलो मुफ्त चावल, 1 किलो तुवर दाल और 1500 रुपये नकद रकूमात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। बताया जाता है कि सारी रियासत में सफेद राशन कार्ड गिरिंदों की जुमला तादाद 8,754 लाख पर मुश्तमिल है, जिन्हें हर माह हुकूमत हिंद की जानिब से 8,754 मेट्रिक टन तुवर दाल की सरबराही ला रही है। तेलंगाना अदालत अदलिया हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत तेलंगाना को हिदायत दी कि रियासत भर में 23 मार्च से जारी लॉकडाउन से मुतासिरा 87.50 लाख सफेद कार्ड रखने वाले तमाम गरीब खानदानों को फौरन 1500 रुपये की माली इमदाद फ्राहम करे और बसर-ए-इख्तियार रियासती TRS हुकूमत से कहा कि वो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान चावल हासिल न करने वाले खानदानों को 1500 रुपये की इमदाद न देने से मुतालिक शर्त से दस्तबरदारी अख्तियार करे, भले ही इन्होंने 3 माह तक चावल हासिल ना किया हो, लेकिन
लॉकडाउन की परेशानियों को देखते हुए इन्हें 1500 रुपये की इमदाद फराहम की जाए और इसके अलावा बायोमेट्रिक की शर्त के बगैर माइग्रेटिंग वर्कर्स, कबाइल और सफ़ेद राशन कार्ड न रखने वाले अफराद को भी चावल और दीगर ज़रूरी अशिया सरबराह की जाए। अवाम को 1 जून के बाद 1500 रुपये नकद और फीकस 12 किलो चावल दस्तयाब होगा। रियासत में कोरोना वायरस के 123 नए केसेस और 6 अमवात। बैरूनी वर्कर्स और दीगर ममालिक से आने वाले मुतासरीन की जुमला तादाद 297 हो गई है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 123 नए मुस्बित केसेस सामने आए हैं। आज 6 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इसी तरह तेलंगाना में वायरस से मरने वालों की जुमला तादाद 63 को पहुंच गई है। आज 123 केसेस के साथ रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की जुमला तादाद 2114 को पहुंच गई है। आज जो 123 केस दर्ज किए गए, इनमें सिर्फ GHMC के 93 शामिल है। आज हैदराबाद में 14 पुलिस मुलाजमीन की टेस्ट रिपोर्ट्स मुस्बित बरामद हुई है। आज कोरोना वायरस के जो मुस्बित रिपोर्ट्स बरामद हुई है, इनमें सऊदी अरब से आने वालों की तादाद 49 शामिल है, जबकि बैरूनी वर्कर्स 19 बताए गए हैं। इसी तरह से अब तक मुल्क के दीगर इलाकों से और दीगर ममालिक से आने वाले अफराद जिनका नतीजा मुस्बित बरामद हुआ है, इनकी तादाद 297 को पहुँच गई है। अब तक वायरस के सबब डिस्चार्ज होने वालों की जुमला तादाद 1321 हो गई है, जबकि मुख्तलिफ दवाखानों में मौजूद कोरोना के सरगर्म केस की तादाद 714 बताई गई है। रियासत के 20 अजला में गुज़िश्ता 14 दिन से एक भी मुस्बित केस नहीं पाया गया। तेलंगाना को सऊदी अरब से 458 अफराद सफर करके यहाँ पहुँचे हैं, जिन्हें रियासत के मुख्तलिफ सरकारी क्वारंटाइन मराकिज में रखा गया है। अब तक 82 अफराद जो सऊदी अरब से आए हैं, इनके मुस्बित नतीजे बरामद हुए हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। दीगर रियासतों से आने वाले अफराद को होम क्वारंटाइन किया गया है। ज्यादातर अफराद जो यहाँ पहुँचे हैं, इनका ताल्लुक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार वगैरह से है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अगर नए लोग नजर आए हैं, इसकी इत्तला दे। धूप की शिद्दत ने रिकॉर्ड कायम किया। निजामाबाद में आलमी सतह पर दर्ज हरारत दर्ज। अवाम धूप के औकात में बाहर निकलने से परहेज करे। रियासत के अजला निजामाबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, पेदापल्ली में दर्ज हरारत 46 से ज़ायद दर्ज किया गया। माहिरीन ने बताया कि टॉप 10 गर्म मुकामात में तेलंगाना के चंद मुकामात सेकेंड हॉट स्पॉट्स माने जा रहे हैं। आइंदा दिनों में दर्ज हरारत 47 से ज्यादा पहुंच जाने के इम्कानात के पेश नज़र अवाम से ख्वाहिश की है कि वो यौमिया 6 ता 7 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और सुबह 11 ता 4 बजे दिन के दरमियान सूरज में ना निकलने का मशवरा दिया जाता है। शदीद धूप के बायस लू लगने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। जिले निजामाबाद में दिन ब दिन दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है। दर्ज हरारत 46.3 डिग्री से तजाविज कर चुका है, जहाँ जुमे के दिन 46.3 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज किया गया, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि आइंदा दिनों में दर्ज हरारत में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जून के पहले और दूसरे हफ्ते में दर्ज हरारत में इजाफा होगा। दर्ज हरारत में बेतहाशा इजाफे से अवाम में बेचैनी का इजहार किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आदिलाबाद और निजामाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी की शिद्दत है। गुज़िश्ता साल गर्मी के कहर के ताप न लाते हुए मामूर अफराद, मवेशी, परिंदे दम तोड़ने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। दिन भर शदीद धूप और गर्मी के बायस अवाम बेचैन है, तो वहीं रात देर गए तक गर्म हवाएं चल रही हैं। सुबह से ही शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है। वाज़ेह है कि साल 2015 में माह मई में दर्ज हरारत 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 2005 में दर्ज हरारत 47.5 रिकॉर्ड हुआ था। 2019 में दर्ज हरारत 48.5 पहुंच गया था। जारी साल दर्ज हरारत में बेतहाशा इजाफा होने के इम्कानात थे। अंडरग्राउंड जमीन में पानी कम हो जाने से शहरी इलाकों में बोर खुश्क होने की वजह से पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना है। बार बार बरक़ी कटौती से मौसम गर्मा में अवाम को दोहरी परेशानी है। अवाम से गुजारिश है कि वो पानी का बेजा इस्तेमाल ना करे। मालिकिन से मुतालबा किया कि अपने मजदूरों के लिए राहत के इक़दाम करें। फी सिलेंडर 607 रुपये, घर तक पहुंचाने पर 630 रुपये अदा करें। अवाम को गैस सिलेंडर 607 रुपये में दस्तयाब हो रहा है। क़ब्ल-अज़ीन फी सिलेंडर 941 रुपये में हासिल होता था। लॉकडाउन की सूरत हाल में पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की जाने से अवाम में राहत का इजहार किया जा रहा है।
जिले निजामाबाद में 2,07,000 घरेलू पकवान गैस सिलेंडर है, जिनमें डबल सिलेंडर गैस कनेक्शन 1,19,000 है, डीपीएम गैस कनेक्शन 79,000 है, CSR गैस कनेक्शन 28,500 है, कमर्शियल गैस कनेक्शन 3,400 है। सारे जिले में जुमला 35 गैस एजेंसियां हैं, जिसके जरिए रोजाना हजारों सारिफिन मुकर्ररा कीमत अदा करते हुए पकवान गैस सिलेंडर हासिल करते हैं। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कमी होने से सारिफिन में राहत का इजहार किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से अवाम माशी बहरान से दो चार है। पकवान गैस सिलेंडर की कम करदा कीमत को मुसलसल बरकरार रखने का अवाम मुतालबा कर रहे हैं। मार्केट बहाल हो चुकी है। कवायद में नरमी के बायस अनकरीब होटल, टिफिन सेंटर, रेस्टोरेंट, ढाबा खुलने के इम्कान थे। अवाम का मुतालबा है कि गैस सिलेंडर का गैर मजाज इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। एसएससी इम्तिहानात एक बेंच पर एक ही तालिब इल्म को बैठाया जाएगा। 8 जून से आगाज। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम चतरा रामचरण का जायजा इजलास। अदालत की हिदायत के मुताबिक कोविड-19 के क़वायद के तहत 8 जून से 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ होगा। इम्तिहानात के इंतजामात और एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात चतरा रामचरण ने आज तमाम अजला के महकमे तालीमात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इजलास के दौरान नए इम्तिहानी मराकिज़ से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर तशहीर, ट्रांसपोर्ट के इंतजामात और इम्तिहानी मराकिज़ में कोरोना से महफूज रहने से मुतालिक रहनुमायाना उसूल जारी किए गए। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इम्तिहानात के निकाह से मुतालिक जिले कलेक्टर्स की क़यादत में मुख्तलिफ महकमों के आपसी तालमेल के जरिए इजलास मुनक़िद किए जाए और तुलबा को इम्तिहानी मराकिज़ में किसी भी किस्म की मुश्किलात न होने पाए। इम्तिहानी मराकिज़ के पास रोल नंबर से मुतालिक तफसीलात नोट्स बोर्ड पर चिपसा की जाए और इसके साथ महकमे तालीमात के दफ्तर की वेबसाइट पर भी ये तफसीलात दस्तियाब रखी जाए। तुलबा और औलियाए तुलबा से ख्वाहिश की गई वो इम्तिहानी मराकिज़ का 4 दिन कबल ही मुआयना कर ले। तुलबा को इम्तिहानी मराकिज़ में 1 घंटा कबल दाखिले की इजाज़त रहेगी। इसके पेश नज़र तुलबा से ख्वाहिश की गई कि वो कबल अज़ वक्त इम्तिहानी मराकिज़ को रोज़ाना सैनिटाइज़र करने के अलावा तुलबा को मास्क फ्राहम करने, समाजी दूरी को यकीनी बनाए और अदालत के अहकामात के मुताबिक थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही तुलबा को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने दिया जाएगा। एक बेंच पर सिर्फ एक ही तालिब इल्म को बैठाया जाए। इम्तिहानात, तजावीज़ और मशवरों के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में हेल्पलाइन कायम की जाए। खराबी सेहत से मुतासिर तुलबा के लिए अलहदा रूम का इंतजाम करते हुए तिब्बी माहिरीन की मौजूदगी में इम्तिहान तहरीर करवाया जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50%, वज़ाइफ में 25% कटौती। अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में 75%, IAS, IPS अफसरान की तनख्वाहों का 60% तख़फ़ीफ़ का ऐलान। हुकूमत तेलंगाना ने 4 मई को एक अहम फैसला करते हुए माह मई के दौरान अवामी नुमाइंदों से लेकर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक तमाम अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में 75%, IAS, IPS अफसरान की तनख्वाहों में 60%, आम रियासती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50%, वजीफा याबों की वज़ाइफ में 25% और आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की उजरतों में 10% कटौती की जाएगी। हुकूमत ने वजाहत की कि लॉकडाउन के सबब तेलंगाना में चूंकि रियासत की माली हालात ठीक नहीं है, चुनांचा माह मई के दौरान भी इन तमाम की तनख्वाहों में बतदरुस्त कटौती जारी रहेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन में महकमे फाइनेंस के आला अहदेदारों के साथ आला सतही जायजा इजलास के बाद ये फैसला किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान भी इन तनख्वाहों और उजरतों में कटौती की गई थी। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि रियासत तेलंगाना को हर माह कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन के सबब महज 3,100 करोड़ की आमदनी हुई और इसमें भी मरकजी टैक्स का हिस्सा 982 करोड़ शामिल है। KCR ने कहा कि रियासत को वाजिबुल अदा खर्च के अक़सात के तौर पर सालाना 37,400 करोड़ रुपये अदा करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अगरचे लॉकडाउन के रहनुमायाना खतूत में कई रियायतें और
नरमी पैदा की थी, लेकिन इसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए और न ही आमदनी में कोई काबिल लिहाज इजाफा हो सका। ट्रांसपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और दीगर महकमे जात से आमदनी तौक़े के मुताबिक नहीं हो सकी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मुलाजमीन की तनख्वाह और वज़ाइफ मुकम्मल अदा किए गए तो इससे 3000 करोड़ रुपए के जायद मसारिफ होंगे और सारा सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। चुनांचा रियासत में जारी मुख्तलिफ कामों पर अदायगी के लिए कोई रकम नहीं रहेगी। चुनांचा हमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करना था। अलबत्ता वजीफा पैरा नासाली की मुकम्मल रकम अदा की जाएगी। लॉकडाउन के रहनुमायाना खतूत में नरमी की गई है। चुनांचा मजदूरों और मेहनत कशों को रोजाना काम मिल जाएगा। चुनांचा इस माह 1500 नकद रकम नहीं दी जाएगी। रियासत तेलंगाना का मशहूर मारूफ दीनी इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद में जदीद व कदीम दाखिलों का आगाज। रियासत तेलंगाना का मशहूर व मारूफ दीनी इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद में जदीद व कदीम दाखिलों का आगाज। तमाम तर उमूर ऑनलाइन अंजाम दिए जाएंगे। इदारे की वेबसाइट पर क्लिक करके दाखिला फॉर्म भरें। कदीम व जदीद दाखिलों की आखिरी तारीख 6 शव्वाल है। 7 शव्वाल को जदीद उम्मीदवारों का ऑनलाइन इम्तिहान होगा। 8 शव्वाल को दाखिले के सिलसिले में इत्तला दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 9948871926 9005203409 9949255721। रियासत में काश्तकारों का नया दौर। हल्के बालकोंडा रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर लगाए गए सेब के बागात का किया इन्होंने दौरा। इन्होंने दी किसानों को मुबारकबाद। रियासती वजीर वेम्बला प्रशांत रेड्डी ने अपने हल्के बालकोंडा में मोपकाल मंडल मंचिल लिम्बा रेड्डी ने अपनी ज़राई जमीन पर हिमाचल सेब के बाग की काश्त करने पर जायजा लिया। इन्होंने किसानों को सराहते हुए कहा कि तेलंगाना में सेब की काश्त को तरक्की देने पर नफा बख्श कीमत मिलने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हिमाचल सेब के बाग की काश्त करते हुए दीगर अवामी तलब वाली फसलों की भी काश्त करने को कहा, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। ఉన్నారు వ్యవసాయ మామిడి తోట కూడా ఉంది. నేను కూడా నమ్మలే వాస్తవంగా. ఈయన తోటలో ఆపిల్ పండ్ల చెట్లు 1.5 ఇయర్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ చెట్లు యాక్చువల్గా 3 సంవత్సరాల తర్వాత కాయలు కాస్తుంది, పంట ఇస్తుంది. బట్ ఎట్లా ఉందో చూద్దామని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. 1.5 ఇయర్ కూడా చిన్నగా కాయలు స్టార్ట్ అయినాయి. అక్కడ చెట్టుకు ఆ చెట్టుకి ఇట్లా కాయలు స్టార్ట్ అయినాయి. ఒక కాయ తిన్నా కూడా నేను మంచిగా ఉన్నది, స్వీట్ వెరైటీ ఉన్నది. లింబారెడ్డి గారికి నేను అభినందిస్తూ ఉన్నా. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నది కూడా అదే, లాభసాటి వ్యవసాయ విధానం రావాలి, లాభసాటి పంటలు పండించాలి, ఎప్పుడు రొటీన్ ఒకటే పంటలు కాకుండా ఇటువంటి ఆలోచన కూడా జరగాలి. నియోజకవర్గంలో ఇంకా కొంతమంది రైతులను కూడా వేద్దాం. ఫస్ట్ నేనే వేస్తాను, మా వేల్పూర్లో నా సొంత గ్రామంలో వేస్తా. లింబారెడ్డి గారి సక్సెస్ చూద్దాం. ఇంకొక 1.5 ఇయర్ అంటే 3 ఇయర్స్ తర్వాత పంట వస్తుంది అని అంటా ఉన్నారు. అంటే ఆదిలాబాద్ ఆల్రెడీ వచ్చింది సేమ్ సీడ్, హరిమాన్ సీడ్ అని. ఇది కూడా చూద్దాం. ఇంకో 1.5 ఇయర్లో ఆశిద్దాం. లింబారెడ్డి గారు సక్సెస్ కావాలి, మంచిగా ఆయన యాపిల్ తోట మంచిగా फर्स्ट क्लास पंडी आयना मंचे सक्सेस कावाले। ज़राई पैदावार से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केसीआर कोशा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी किसानों के हमरा और शऊर बेदारी इजलास। रियासती वजीर वेम्बला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के मौजे मोते 2020 बारिश के मौसम नफा बख्श फसल के ताल्लुक से शऊर बेदार प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि केसीआर की हिदायत के मुताबिक नफा बख्श फसलों की पैदावार करने को कहा। इन्होंने कहा कि मौजे मोते पर केसीआर साहब मेहरबान है, इसीलिए किसानों के लिए शऊर बेदार प्रोग्राम मौजे मोते से ही शुरू हुआ। कांग्रेस के कायदीन बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं जो सारे के सारे झूठ पर मुबनी है। किसानों के लिए जरूरी चीजें केसीआर साहब फराहम कर रहे हैं और वो तेलंगाना को तरक्की दिलाने के लिए मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने किसानों को कर्जों से निजात दिलाकर हर किसान को राइतु बंधु स्कीम के तहत इमदाद फराहम की है। इन्होंने कहा कि 50 साल हमारे साथ धोखा हुआ, यूरिया के लिए किसान को कतार में ठहरने की जरूरत नहीं रही। रियासत तेलंगाना किसान के बोर के लिए 40,000 करोड़ रुपए के अखराजात दिए गए और लक्ष्मी कैनाल को 13 करोड़ रुपए से मरम्मत की जा रही है। रियासत तेलंगाना में 50% काश्त हुई। उन्होंने कहा कि मार्केट में तलब वाली फसलों को उगाने के लिए कहा, नफा बख्श फसलों की पैदावार करने को कहा। ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు చెప్తున్నటువంటి లాభసాటి వ్యవసాయ విధానం ఏంటంటే మన ప్రాంతంలో మనం పండించే పంటలే, మన నేలలకు అనువుగా ఉండే పంటలే, మన వాతావరణానికి అనువుగా ఉండే పంటలే ఏ మోతాదులో వేయాలి. ఒక సీజన్లో మక్క ఎక్కువ, ఒక సీజన్లో మక్క తక్కువ, ఒక సీజన్లో వరి ఎక్కువ, ఒక సీజన్లో వరి తక్కువ, ఇట్లా
ఆ సీజన్లో ఏ సీజన్లో ఏ పంటలు మనం పండించే పంటలలోనే ఏ పంట ఎంత మోతాదులో వేయాలి అనేదే లాభసాటి వ్యవసాయ విధానం సూచిస్తుంది. దానికి కులబద్ద ఏంటంటే మార్కెటింగ్ రంగంలో పరిస్థితులు, దేశంలో మార్కెటింగ్ ఏ పంటకు ఎట్లా ఉన్నది అది మొదలే స్టడీ చేసి రైతులకు సూచనలు చేస్తారు. వాతావరణ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి, ఈ సంవత్సరం వర్షాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎండ ఎట్లుంటుంది, తేమ ఎట్లుంటుంది, ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా గమనించి శాస్త్రవేత్తలు ప్రభుత్వానికి సూచిస్తాయి. ఈ వాతావరణం బట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఈ పంట అయితే బాగుంటుంది, ఈ పంట దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది, ఆ పంటల్ని మనం వేసుకోవాలి. ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించేది. దీంట్లో ఎవరికి నిర్బంధం లేదు, ఎవరికి ఏది రైతు బంధు ఆగిపోయేది లేదు. అవన్నీ తప్పుడు, అవన్నీ దీంట్లో ఏదో పుడుతుందేమో కొద్దిగా ఆశ పెట్టుకున్నారు పాపం. దీంట్లో ఏమన్నా పుడితే రాజకీయం పుట్టించి లబ్ధి పొందాలని ఏం పుట్టది. కేసీఆర్ ఉండగా రైతులకు ఏం నష్టం. रोशन टीवी K6 NCN की खबर का असर, गैर कानूनी रेत व मुरम के कारोबार पर ओहदेदार आए हरकत में। मौजूद SRSP के जनवरी डैम से गैर कानूनी तौर पर रेत व मुरम की मुंतकली के बारे में रोशन टीवी GTPL व K6 पर खबर नशर की गई थी, जिसके बाद हरकत में आते हुए आज RDO श्रीनिवास लू ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि इस मुकाम पर एक VRA को मुंतसिम किया जाएगा और यहाँ से गैर कानूनी तौर पर रेत व मुरम मुंतकिल करने पर महकमे पुलिस के जरिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तलबा को टेक्निकी सलाहियतों को उभारने के लिए शहर में डिज़ाइन टेक सॉल्यूशन का क़याम, बीटेक पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग तलबा इस्तेफादा हासिल करें। VREC चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी, बीजेपी सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया की अवाम से अपील। जिले निजामाबाद हैदराबाद रोड पर वाक़े आकृति और क्रुमा संगम भवन में पति शिव कुमार और शेख आमिर के तहत डिजाइन टेक सोल्यूशन का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से VREC चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी और जिले बीजेपी के सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने शिरकत करके रिबन कट करके इफ्तिताह अमल में लाने के बाद कुछ मजहबी रस्म रिवाज को अंजाम देकर कोचिंग सेंटर का जायजा लिया गया। इन्होंने कहा कि बीटेक पॉलिटेक्निक मुकम्मल होने के बाद तलबा खराब हालात के बावजूद भी हैदराबाद का रुख किया करते थे, मगर अब हमारे जिले निजामाबाद हैदराबाद रोड के दरमियान मुकाम पर कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि तमाम तलबा व तालिबात इस सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करें। ఈ రోజు నిజామాబాద్లో విజయ్ టెక్ సొల్యూషన్స్ వారు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. అందులో మా విజయ్ రూరల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ HOD గారు శివకుమార్ చాలా ఆయన ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి, టెక్నికల్గా చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి. తప్పకుండా వారు మన నిజామాబాద్లోని పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్థులైతేనేమి, అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల విద్యార్థులందరికీ కూడా వారి సేవలు, వారికి ఉన్న నాలెడ్జి తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది. మిత్రుడు శివకుమార్ డిజైన్ టెక్ సొల్యూషన్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఆధునిక యుగంలో టెక్నాలజీ పెరిగిపోతున్నది. చాలామంది స్టూడెంట్స్ నిజామాబాద్ లాంటి పట్టణాల నుండి హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీకి వెళ్ళేసేసి కోర్సెస్ చేసుకోవడం చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులలో నిజామాబాద్లో ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడము నిజంగా నిజామాబాద్ విద్యార్థులకు కూడా ఒక శుభసూచకము. అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ యాజమాన్యానికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, నిజామాబాద్లో ఉన్న ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లను, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లాంటి నగరానికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ మిడిల్ క్లాస్కి బిలో మిడిల్ క్లాస్కి చాలా కష్టమవుతుంది. కాబట్టి వారందరికీ కూడా ఈ స్టూడెంట్లందరినీ కూడా ఈ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్కి పంపించి వీళ్ళని కూడా ప్రోత్సహిస్తే మన నిజామాబాద్ జిల్లా, మన నిజామాబాద్ పట్టణం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ इस मौके पर डिवीजन नंबर 49 से ताल्लुक़ रखने वाले कॉर्पोरेटर और कोचिंग को आए तलबा ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ी पर। रियासती हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हुए किसान फायदा बख्श फसल उगाए, रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। मोते गांव से रियासती वजीर आला KCR का खुसूसी लगाव, इन्होंने किसानों के लिए किया नए दौर का आगाज, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब।
अवामी शिकायत पर रुकन असम्बली शकील आबिद ने किया बोधन फिल्टर बेड का दौरा, कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को दी हिदायत। इस बार मौसमी बारिश हो सकता है और भी खतरनाक। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी जानिब मौसमी अमराज, उस पर ना के बराबर अक़लियती इलाकों में शऊर बेदारी। गरीब की नहीं पैसे वालों की दुनिया। अरसापली तालाब अराजी पर मुसलसल जारी कब्जा, लेकिन अहदेदारान खामोश। रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।